with our target at 75,000 crores. In addition to creating over 2.5 million direct and indirect employment opportunities, we aspire to touch the lives of most of our 45 million sisters and brothers in Northeast. Second, Jio has already covered 90% of the population with over 5 million 5G subscribers. We will double this number this year. Jio's priority will be to bring the revolutionary power of artificial intelligence to all schools, hospitals, enterprise, and homes. When talent meets technology and competence meets connectivity, our Northeast will surge ahead. Third, Reliance Retail will vastly increase its procurement of staples, fruits, and vegetables to boost the income of farmers. We will also invest in factories for high-quality FMCG product in the regions and promote the region's fabulous artisan economy. Fourth, we will greatly enhance generation of solar power in the region. Our Prime Minister often speaks of converting waste to wealth. In line with this, we will convert the region's vast wasteland and wealth land by setting up 350 integrated compressed biogas plants. Fifth, Reliance Foundation will bring the best of cancer care to the Northeast. To begin with, we have established a 150-bed comprehensive cancer hospital in Manipur. We are collaborating with Mizoram University on care of breast cancer using genomic data. In Guwahati, we have built an advanced molecular diagnostic and research lab. It will be among the largest genome sequencing capacities in India. We will help transform the Northeast into a healthcare hub and a research powerhouse. Sixth, the Northeast is a treasure house of world-class talent in multiple sports. Reliance Foundation will work with all the 8 states to set up Olympic training centers which will prepare our youth to be tomorrow's medal winners in Olympics. Most respected Prime Minister Shri Modi ji, you have achieved something unbelievable and unimaginable. You have brought the Northeast from the periphery to the center of India's developmental map, from the margins to the mainstream of the India story. Under your guidance, we in industry will work with all the chief ministers to make the Northeast an inspiring model to demonstrate to the rest of the world how we can make progress, how development can take care of Dharti Ma, how Lakshmi Mata can reach every home, and how Bharat Mata indeed embraces all her children with her boundless love. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत आभार मुकेश अंबानी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और अपने उद्गार हम सबके साथ साझा करें। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज और मेटल के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आकर अपने उद्गार आप सबके समक्ष रखें, अपने विचार आपके साथ साझा करें। उद्योग और व्यापार के साथ साथ आपकी ख्याति एक समाज सेवी के रूप में भी है। श्री अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित सभी मिनिस्टर्स, 8 राज्यों के सीएम, गवर्नर, आप सभी का राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट
की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जिस स्पीड से नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। हम लोग 50 साल से सुनते थे, आज जिस ऊंचाई पे ये पहुंच रहा है, एक ही आदमी की सूझबूझ थी, एक ही आदमी की समझ थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी। हीरे की परख जौहरी कोई होती है, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत बधाई, ये पोजीशन आज हम लोग लेके आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे इकोनॉमिक के जबरदस्त पोटेंशियल भंडार हैं। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे चाय, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल और क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रोज नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। यहाँ के एंटरप्रेन्योर, यहाँ के व्यापारी भी बहुत सक्षम हैं। इनको भी एम्पावर करने से ये बड़े बड़े काम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। टूरिज्म का इससे बड़ा हब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। हर जिस हिसाब से आज प्रधानमंत्री जी हर जगह लोगों को भेज रहे हैं, सारे 8 स्टेट वालों को हर दुनिया में हर कोने में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है और ये टूरिज्म का हब बन सकता है। लोग यहां आएंगे। पहली डिस्कवरी ऑयल की 160 साल पहले डिगबॉय में हुई थी। ये अमेरिका वाले, पूरी दुनिया वाले बोलते हैं ये मेगा बेसिन है। मेगा बेसिन वर्ल्ड में 20-25 मेगा बेसिन है जिसमें कि ऑयल का, गैस का भंडार है। अरुणाचल में ग्रेफाइट, वेनेडियम, रेयर अर्थ और जैसे बताया हाइड्रो पावर की बहुत जबरदस्त क्षमता है। हम असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। कम से कम 70-80 हजार करोड़ रुपए का निवेश ऑयल एंड गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, इन सब एरियो में लगाएंगे। सबसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग इसमें काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है ह्यूमन रिसोर्स जो इस 8 क्षेत्र में है, 8 स्टेट में है। पूरी दुनिया में जो स्किल इन लोगों में है, नेचुरल स्किल है। लोग इनको प्रेफर करते हैं एम्प्लॉय करने के लिए। दे आर प्रेफर एम्प्लॉय फॉर द सर्विस सेक्टर। इसको और हम आगे लेके जाएं। 60% यूथ 30 साल की उम्र से कम है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में यंग और डायनेमिक मिनिस्टर सिंधिया जी ने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में। 10-10 बार फोन किया, हर जगह पहुंचे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी, आज जो हुआ है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे आने वाले दिनों में हम उनके साथ खड़े हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा सहित और 8 राज्यों के लीडर को, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता रहेगा, नए भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनिल अग्रवाल जी का। आज के इस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उन्हें अब मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए। अडानी ग्रुप की पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन तथा ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल प्रेजेंस है
50 से भी अधिक देशों में आपकी कंपनियों का कारोबार फैला हुआ है। श्री गौतम अडानी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, Honorable Chief Ministers of Northeastern States, His Excellency Governor of Manipur, Honorable Union Minister Sri Sindhya ji, Captains of Industry and esteemed guests, Namaskar. It is an honor to be speaking at the Rising Northeast Investor Summit. Over the past decade, in the hills and valleys of the Northeast, a new chapter in India's growth story is unfolding. A story rooted in diversity, resilience, and untapped potential. This region is now a source of our cultural pride, economic promise, and a strategic directions. And behind this rise is the vision of one leader who recognizes no borders, only beginnings. Honorable Prime Minister, when you said, act east, act fast, act first, you gave the Northeast is a wake-up call. 65 personal visits, 6.2 lakhs crores of investment since 2014, doubling the road network to 16,000 kilometers, doubling the number of airports to 18. This is not just the policy. It is your hallmark of a big thinking. It is the hallmark of your belief systems. It is the hallmark of your convictions in a Sabka Saath, Sabka Vikas. 3 months ago, in Assam, we pledged an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. Our focus will span green energy, including smart meters, hydro, pump storage, power transmission, roads and highways, digital infrastructure, logistics, as well as capacity building through skilling and vocational training centers. But more than infrastructures, we will invest in people. Every initiative will prioritize local jobs, local entrepreneurships, and a community engagement. This is what Viksit Bharat 2047 is all about. Honorable Prime Minister, we will walk in step with your vision. Honorable Chief Ministers, we will hold hands with your people. Honorable Minister of Northeast, will echo your mission. And to our brothers and sisters of Northeast,
we at Adani will stand beside your dreams, your dignity, and your destiny. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत आभार आदरणीय गौतम अडानी जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अंबुजा नेवतिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हर्षवर्धन नेवतिया जी को। पद्मश्री से सम्मानित हर्षवर्धन जी उनकी कंपनीज रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में ऑपरेट करती है। आपकी पहचान एक कला विशेषज्ञ और भारतीय विरासत के संरक्षक के रूप में भी है। श्री हर्षवर्धन नेवतिया। Honorable Prime Minister, Honorable Minister Sri Scindia, Honorable Chief Ministers, Honorable Governor, Honorable Minister of State, dignitaries, industrialists, ladies and gentlemen, Namaskar. At the outset, I would just like to take a few seconds to express my felicitations and congratulations to the Honorable Prime Minister and our armed forces for the exemplary leadership provided during the recent kinetic hostilities with our western neighbor. We have been able to send a clear and loud message to those trying to perpetrate brutal acts of terrorism on our land, and at the same time we have been able to limit the loss of human lives. Congratulations, sir. Now coming to the Northeast, I live in the city of Kolkata, and over the years I have had the privilege of virtually visiting almost all the states of the Northeast, of course primarily for tourism purposes. I have seen this incredible beauty of the land, the mesmerizing Himalayas, and the potential of its talented and hardworking people. But we saw that infrastructure was inadequate and opportunities were few. It is really remarkable how the Prime Minister has identified this as a shortcoming. In the last 10 years, we have seen remarkable progress in infrastructure, in development, and now we can literally see that Northeast is not just rising, it has already risen and it can rise far, far ahead. Our present investments are in Sikkim and Assam, and also in the district of Darjeeling, which is in the similar geography. We have been working in the region for about 15 years and have invested about 2,000 crores in projects that are in healthcare, hospitality, and real estate. We are willing to further invest 3,000 to 4,000 crores in this region in the next few years in these same areas, and we are at the present moment scouting for suitable lands for the same. We are extremely encouraged, sir, by the initiative taken by the Government of India, the supportive environment that we have experienced, and we are really excited to explore further opportunities in these states. We have outlined our proposal to the Ministry of Donor, and we will follow up further with them. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत आभार हर्षवर्धन नेवतिया जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा जंगल ट्रेवल्स इंडिया और असम बंगाल नेविगेशन कंपनी की डायरेक्टर और को फाउंडर मिस जानवी फुकन जी को, जिनका संबंध नॉर्थ ईस्ट से ही है। आपकी जंगल ट्रेवल्स इंडिया नॉर्थ ईस्ट की पहली इनबाउंड इको टूर ऑपरेट करने वाली कंपनी है। वहीं असम बंगाल नेविगेशन कंपनी भारत की अग्रणी लॉन्ग रेंज रिवर क्रूज कंपनी है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा पर ऑपरेट करती है। जानवी फुकन जी। Honorable Prime Minister and distinguished guests, Namaste. I thank you for the opportunity
to speak as a local player from Northeast. So 35 years ago, my husband Ashish Phukan and I started Jungle Travels India to promote the Northeast when it was little known to the world. We started with a two-man staff, and today the JTI Group is a 300-plus strong company drawn from all rural communities around our operations. In 2008, our Assam Bengal Navigation Company put India on the river cruising map of the world with our first long-distance river cruise on the Brahmaputra. We went on to build 3 more ships on the Brahmaputra to sail on the Brahmaputra and the Ganges. We were also the first to introduce the concept of houseboats, and now we run 2 houseboats on the Brahmaputra, both of which attract large overseas audience over the years, for the last 22 years. Our plans for investing in our 5th ship is currently on the hold because shipbuilding of our size is only possible in Bengal, and with the current situation in Bangladesh, we are not certain of a safe passage, but hope that will improve to bring our ship from Bengal to Assam through the Bangladeshi waters. So in 2008, we also invested in our environmentally responsible Eco Lodge, the Diflu River Lodge in Kaziranga, which is a World Heritage Site. Diflu emphasized on vernacular architecture and supported its human resources, our local people. So it was an authentic flavor, a simple, rustic, but it's an authentic lifestyle of what we are all about. And among the other dignitaries that we have hosted over the years, we had Prince William and Princess Catherine, perhaps for the novelty of this very experience. Today, with Advantage Assam 2.0, we are encouraged to invest in a 5-star boutique resort in Manas National Park, another World Heritage Site of Assam. We have been invested in the handloom and the handicraft sector for its affinity with tourism and have ensured a steady employment generation for rural artisan clusters in a few Northeast states since 2008. Our brand, Lahe Looms, Lahe, which stands for slow and sustainable, is an endeavor to promote Assam's 4 wild silks and to give handloom the craft luxury status it truly deserves. I have just 2 more comments to add. Sir, the big brands like Taj, Marriott, and Radisson, and all are welcome to invest in our Northeast region. But local players with years of experience and a solid track record should also be encouraged. I speak on behalf of all our people, the private sector, who are on their own tried to promote the Northeast when nobody knew about us. Now it is thanks to Rising Northeast and our Honorable Prime Minister's efforts that we are so grateful and truly grateful for where we are today. It was unbelievable 35 years ago. And under your leadership, sir, we have finally seen peace and a massive infrastructure development. That is. And this has brought in an unprecedented tourism inflow, which we didn't think possible all those years ago. And it has brought in this massive growth in tourism, growth in jobs for the youth of our Northeast. It is my submission that with the Ministry of Tourism and donor, if they could come together to play a role in promoting the entire Northeast overseas as one destination, because it is a biodiversity hotspot and the home of the Eastern Himalayas. This would bring in an equitable distribution of the benefits of nature tourism, so without destroying any single destination with over-tourism, to protect the fragile ecosystem of our region. Thank you. Namaste. बहुत बहुत आभार जाह्नवी फूकन जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मेघालय से संबंध रखने वाले 2nd जनरेशन हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योर और स्पोर्ट्स प्रमोटर शिलार सिंह मिंग को। शिलार सिंह
सेंटर पॉइंट ग्रुप ऑफ होटल्स और लाचोंग फुटबॉल क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आजकल आपका विशेष फोकस जो है लिविंग रूट ब्रिज सर्किट्स के साथ साथ इको रिजॉर्ट्स की चेन विकसित करने पर है। श्री लार्सेंग मिंग। Our most respected and beloved Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Union Minister, Shri Jyoti Aditya Scindia ji, a respected Governor of Manipur, all the Chief Ministers on the dais, ladies and gentlemen. As a second-generation entrepreneur, I joined my father, Mr. Prabhat De Sawian, an architect and our group's founder, 25 years ago. From building city landmarks and an award-winning rural luxury resort inspired by local architecture, to infrastructural development for various state governments, and to promoting the concept of tourism through community engagement, pioneering the region's first international concerts way back in 2005, to promoting Northeast India's first football club to play in the Premier League of India, the I-League then. Our journey over the last 2.5 decades has been a long, difficult, and arduous one. However, over the past decade, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Northeast has seen unprecedented development and investment in infrastructure. During this period, the global economic axis of the world has also shifted from the west to the east, where India, China, and the ASEAN now form the economic growth centers of the world for the next 20 years and beyond. As a result, Northeast India, or Bharat's Ishana, as I would like to also refer to it as, now sits at the center of this economic dial or growth map. A game changer in this regard is the close proximity of the under upgradation Guwahati International Airport to all major Indian and ASEAN cities. For instance, Guwahati's distance from Bangkok Airport and Delhi Airport is exactly the same, an approximate 2 hours 15 minutes. And our distance from Guwahati to Mumbai, Bangalore, and to Guangzhou, Kuala Lumpur, and Hanoi is estimated to be more or less the same, an average of 3 hours. Northeast India offers immense opportunities in the fields of trade, tourism, and organic agriculture. These are areas where the Northeast holds a unique advantage due to its geostrategic location, natural beauty, eclectic and rich culture, and unique biodiversity. We in the Centrepoint Group have recently partnered with the Assam Tourism to open a boutique heritage resort in Kaziranga, and amongst its clusters is going to be one of Assam's oldest tourism lodges. We are also currently building a luxury resort in a village near Cherrapunji where cultivation has always been 100% organic. With the launch of these properties, we will be the first hotel and resort chain to be present in what I believe will be India's new golden circuit of tourism. A truly world-class circuit that consists of Guwahati, the city of Eastern Lights, Ma Kamakhya, and the mighty Brahmaputra. Kaziranga, the land of the one-horned rhino. Umiam Lake, widely regarded as the most picturesque lake in India and perhaps Asia as well. Cherrapunji, the birthplace of the Meghalaya age, the land of waterfalls, oranges and honey. And of course, Shillong, the magical and ever vibrant hill city, a jewel city of the East. We plan, encouraged by all these developments, to build 5 more properties, boutique and luxury category, in each of these locations of the Golden Circuit. Land for the projects has already been acquired. Northeast India is rising.
And as Bharat's Ishana rises to its potential, India will rise even faster and further. I take this moment in inviting you to this exciting phase of Northeast India's growth story. Thank you very much. Salute to India. Vande Bharat. Jai Hind. बहुत बहुत आभार शीला सिंह का और उन सभी इंडस्ट्री लीडर्स का जिन्होंने आज यहां नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता से हम सबको प्रोत्साहित किया है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन ने केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों को विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई सोच दी है। महोदय, इमोशंस, इकोलॉजी और इकोनॉमी के आपके मूल मंत्र का ही परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र न तो दिल्ली से दूर है, न हमारे दिलों से दूर है। अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के आपके संकल्प और देश के विकास में ग्रोथ इंजन के रूप में इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है हम सबके लिए। ऐसे विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह है आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुकांता मजूमदार जी, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग जी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नोफ्यो रियो जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहाम जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स, देवी और सज्जनों, आज जब मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है
और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क
किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है। यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा। आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा। और इसके लिए भी हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से और आसान हो जाएगी। हमारी सरकार कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटी है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा और मिजोरम होते हुए बाकी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। इससे पश्चिम बंगाल और मिजोरम की दूरी बहुत कम हो जाएगी। ये इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, आज गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला ऐसे शहरों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मेघालय और मिजोरम में लैंड कस्टम स्टेशंस अब इंटरनेशनल ट्रेड को नया विस्तार दे रहे हैं। इन सारे प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट इंडो पैसिफिक देशों में ट्रेड का नया नाम बनने जा रहा है। यानी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में संभावनाओं का
नया आकाश खुलने जा रहा है। साथियों, आज हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के मैं समझता हूं उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कॉन्सेंट हो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बेहतरीन जगह है। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आप नॉर्थ ईस्ट में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव असर टूरिज्म पर पड़ रहा है। वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इससे गांव-गांव में होम स्टे बन रहे हैं। गाइड्स के रूप में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब हमें इसे और ऊंचाई तक ले जाना है। इको टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में आप सभी के लिए निवेश के बहुत सारे नए मौके हैं। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने। आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। मुद्रा योजना ने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती संख्या नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को स्किल बढ़ाने में मदद कर रही है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा अब सिर्फ इंटरनेट यूजर नहीं, डिजिटल इनोवेटर बन रहे हैं। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर, 4G, 5G कवरेज, टेक्नोलॉजी में उभरती संभावनाएं। नॉर्थ ईस्ट का युवा अब अपने शहर में ही बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट भारत का डिजिटल गेटवे बन रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए
स्किल्स कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्थ ईस्ट इसमें भी आपके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। बीते दशक में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट किए गए। करीब 850 नए स्कूल बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बन चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 2 नए ट्रिपल आईटी नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का कैंपस बनाया गया। करीब 200 नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थापित किए गए। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नॉर्थ ईस्ट में बन रही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। 8 खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस और 250 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर अकेले नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। यानी हर सेक्टर का बेहतरीन टैलेंट आपको नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होगा। आप इसका जरूर फायदा उठाएं। साथियों, आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मिजाज बना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय फूड ब्रांड होनी ही चाहिए। इस सपने को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का दायरा 2 गुना हो चुका है। यहां के हमारी टी, पाइन एप्पल, संतरे, नींबू, हल्दी, अदरक, ऐसी अनेक चीजें, इनका स्वाद और क्वालिटी वाकई अद्भुत है। इनकी डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। इस डिमांड में भी आपके लिए संभावनाएं हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना आसान हो। बेहतर कनेक्टिविटी तो इसमें मदद कर ही रही है। इसके अलावा हम मेगा फूड पार्क्स बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बना रहे हैं। सरकार ने ऑयल पाम मिशन भी शुरू किया है। पाम ऑयल के लिए नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी और क्लाइमेट बहुत ही उत्तम है। ये किसानों के लिए आय का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। ये एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। पाम ऑयल के लिए फार्मिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा अवसर है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट 2 और सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है। ये सेक्टर है एनर्जी और सेमीकंडक्टर। हाइड्रो पावर हो या फिर सोलर पावर, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में सरकार बहुत निवेश कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपके सामने प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का अवसर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग का भी सुनहरा मौका है। सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, स्टोरेज हो, रिसर्च हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जरूरी है। ये हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर पर जितना निवेश आज करेंगे उतना ही विदेशों पर निर्भरता कम होगी। आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है।
बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए। साथियों, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, ये कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम सेकंड राइजिंग समिट करेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके विजन और उनके उद्बोधन के लिए। आपके इसी मार्गदर्शन और शुभ संदेश के साथ 2 दिन का हमारा ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, इस बात का हम सबको पूर्ण विश्वास है। एक बार करतल ध्वनि अपनी तालियों के साथ आइए इस विश्वास को अभिव्यक्त करें और आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इनोवेटर्स समिट का आगाज। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির